Good morning, all of you. Good morning, sir. No need to stand. All of you sit. Now, and students, we have continued to revise Unit 6. That is the name. Introduction to Algebra. That is Unit 6. First of all, I have discussed again the main points, main terms that is used in this chapter. इस चैप्टर में जो टर्म यूज हुए हैं, जो पॉइंट्स यूज हुए हैं, उसका पहले एक बार फिर से मैं नेम मेंशन कर देता हूँ. All of you must learn these terms in your rough copy and revise properly. Learn properly. जितने भी terms हैं, suppose that algebraic expression, combination of literal number, numerals and fundamental operators. इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन है? लिटरल. Now a word comes literal. Letter of alphabet. Literal means letters of alphabet. Letter of alphabet that represents number. That represent number. All of you know the term literal number. Literal number means the letter of alphabet that we use to represent numbers. In algebraic expression, combination of literal. So we know the meaning of literal. Now, तो combination of algebraic expression में क्या क्या combination होना है? तो literal number, numerals. All of you know numerals 0 to 9. No. And fundamental operators. Fundamental operator, that means the symbol we use to calculate mathematical expression. कौन कौन सा सिंबल हम यूज करते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. अब आप समझ गए कि ये पूरे का कॉम्बिनेशन जो है वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है. So now we can say that definition of algebra is combination of literals, numerals and fundamental operators. As for examples, आइए एग्जांपल्स लेते हैं. Literal means letter of alphabet that is used in a small alphabet. हम लोग small alphabet यूज करते हैं, मैंने पहले क्लास में बता चुका है. तो लेटर ऑफ अल्फाबेट आइए x, कोई न्यूमरल यूज करेंगे. सपोज दैट न्यूमरल 0 to 9, that is numeral 4, and connect with mathematical operators plus, minus, multiply, divide. Suppose that minus, so x minus 4 is an algebraic expression having two terms. No. So if
if expression in which use only numerical with fundamental operators, वैसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ न्यूमरल यूज हो, फंडामेंटल ऑपरेटर यूज नहीं हो। सपोज दैट 5 माइनस 4 प्लस 3, इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन है? तो न्यूमरल एंड फंडामेंटल ऑपरेटर, देन दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। सो स्टूडेंट्स आप अच्छे से समझ लीजिए, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में लिटरल कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ओनली नंबर विथ मैथमेटिकल ऑपरेटर। ऑल स्टूडेंट्स म्यूट योरसेल्फ, स्टूडेंट्स म्यूट योरसेल्फ, वेयर एज ऑन योर वीडियो। आप म्यूट कर लीजिए और वीडियो ऑन कीजिए। मैं आपको म्यूट नहीं करना चाह रहा हूं यहाँ से कि पढ़ाने के क्रम में हो सकता है कोई आपको डाउट हो, आप कैसे पूछेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप साउंड क्रिएट करें। So students, till now all of you know the definition of numerical expression in today's class। आज की क्लास का मैं बता रहा हूँ। आज की क्लास में मैंने numerical expression का definition बताया, only numeral combination with mathematical sign। If combination of literal numeral and mathematical sign, then it is called algebraic expression and literal letter of alphabet। Now we have go on, we come on next term। Variables and constant, variables and constant, a quantity, आवाज सुन में, variable and constant, variable a quantity which vary its value। वेरिएबल वर्ड है, वैरी वर्ड से बना है, VARY, वैरी, वैरी मतलब टू बी चेंज, चेंज जो अपना वैल्यू चेंज करे, एंड कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू जो कि चेंज ना हो। अ क्वांटिटी विच डू नॉट चेंज इट्स वैल्यू, जो चेंज नहीं हो, कांस्टेंट। क्वांटिटी विच चेंज इट्स वैल्यू called variable। So we confirm that difference between constant and variable, constant और variable के बीच आपको डिफरेंस आ गया होगा, है ना। आइए एक एग्जांपल से आपको कंफर्म करते हैं। एग्जांपल, सपोज दैट 7x, in this expression 7 is numerical value, so 7 is constant, 7 is constant on this variable x, letter of alphabet vary कर रहा है variable। आइए एक और एग्जांपल से आपको मैं बताता हूँ। दिस इज a square shape, आप देख रहे हैं दिस इज a square shape and this is also a square shape, but the side of a square is differ। साइड ऑफ स्क्वायर जो है वह डिफर है। यहाँ पे हम दो बात लेते हैं, एक तो लेते हैं नंबर ऑफ साइड्स और एक लेते हैं लेंथ ऑफ साइड। मैंने दो स्क्वायर बनाया है, सबसे पहला और दूसरा। अब बताइए पहला फिगर जो है, इस फिगर में नंबर ऑफ साइड कितना, हाउ मेनी नंबर ऑफ साइड, 4। एंड इन दिस फिगर हाउ मेनी साइड, 4। लेंथ
3cm 2cm, ये छोटा है, हेयर लेंथ 3cm, ये 2cm। तो फिक्स क्या हुआ, लेंथ ऑफ साइड या नंबर ऑफ साइड? नंबर ऑफ साइड फिक्स, सो नंबर ऑफ साइड इज कांस्टेंट। नंबर ऑफ साइड इज कांस्टेंट। If we have to find perimeter of a square, यदि हमको इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, then what formula we use? क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? 4 into side। तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into साइड। दैट मींस यदि हम साइड को a रिप्रेजेंट करें यानी 4a, है ना। अब हम देखेंगे कि पहले फिगर के लिए 4 into 3 करना पड़ेगा, एंड सेकेंड फिगर के लिए 4 into 2 करना पड़ेगा। आप बताइए किसका वैल्यू चेंज हुआ? a यानी साइड का वैल्यू चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है। सो वी कंफर्म दैट a लेटर ऑफ अल्फाबेट रिप्रेजेंट नंबर एंड वेरिएबल, ये वेरी हो रहा है, एंड 4 इज द फिक्स वैल्यू। चाहे हम जिस भी मेजरमेंट का स्क्वायर क्यों ना बना दें, लेकिन यदि स्क्वायर बना रहे हैं तो वो नंबर ऑफ साइड कितना होगा? 4। कंफर्म हो गया वेरिएबल कांस्टेंट में। आइए कुछ और एग्जांपल देते हैं आपको, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल इन योर एनवायरनमेंट, राइट 4 एग्जांपल्स ऑफ कांस्टेंट। तो आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। ऐसा तो नहीं है कि आज मैं बोल रहा हूँ एक सप्ताह में 7 दिन, कोई और टीचर, कोई और जगह, कोई और कैलेंडर में कोई और स्टूडेंट बोल देंगे कि नहीं 1 वीक में 10 डेज होते हैं। ये सही हो सकता है? नहीं। तो 1 वीक हैविंग 7 डेज इज द फिक्स, सो इट इज द एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट। एंड टेम्परेचर ऑफ द डे ऑफ अ वीक, एक वीक में पूरे डेज जो है सबका टेम्परेचर मेजर करना है। टेम्परेचर कैन बी चेंज, वो तो चेंज होता है ना। टेम्परेचर इज द एग्जांपल ऑफ एक और एग्जांपल से आपको क्लियर करते हैं। नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ अप्रैल, नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ अप्रैल is the example of constant. Number of days in the month of February, variable। क्यों variable क्यों हो गया? तो in leap year having 29 days and ordinary year having 28 days. No? Yes, sir. Okay. Now we come on like term and unlike term. Like terms, unlike term. Like term having the same variables, terms having the same variables। आप इसके अंदर ब्रैकेट में समझने के लिए लिख सकते हैं same variables। यहाँ क्या लिखेंगे? different variables। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये डिफिनीशन सर इतना क्यों रिवाइज कराते, क्यों याद कराते, क्वेश्चन क्यों नहीं बनवाते हैं? आपके माइंड में क्वेश्चन होगा ये, क्यों नहीं है? आपके माइंड में क्वेश्चन क्यों नहीं है? मेरे माइंड में तो है, मेरे माइंड में तो है। यदि कोई टीचर मुझे इस तरह से पढ़ाएं तो मेरे माइंड में क्वेश्चन हम टीचर से पूछेंगे कि आप ये सब डिफिनीशन करा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं करा रहे? आपके पास क्वेश्चन नहीं, चलिए आपके क्वेश्चन का मैं आंसर करता हूँ। आपके पास क्वेश्चन नहीं है
मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन हो तो इसका आंसर मैं करता हूँ। दिस इज द रिवीजन क्लास एंड फर्स्ट टाइम ऑल ऑफ यू लर्न all the terms, definition of all the terms, properties, and then after solution of example question, worksheet question। यानी पहली बार आप सभी definition के साथ question solve कर चुके हैं, ठीक है। and this is revision class, so first we want to revise। यदि आप definition सब जैसे आइए like term, unlike term, इस पे डिपेंड। यदि स्टूडेंट्स को लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। आइए एक क्वेश्चन देते हैं आपको, 5x प्लस 3y प्लस 2x। इन दिस क्वेश्चन नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स। आप सिर्फ अपने राइट हैंड का फिंगर निकालेंगे, जिसको 2 दिख रहा होगा 2 फिंगर निकालेंगे, जिसको 3 दिख रहा होगा 3 फिंगर निकालेंगे। हम यहीं से ऑब्जर्व कर लेंगे आपका आंसर। ओके, सभी स्टूडेंट्स का 2 फिंगर निकला है, लेकिन एक स्टूडेंट पीछे जिनका 3 फिंगर निकला है। आप छुपाइए नहीं, आपको कंफ्यूजन है। स्टूडेंट अब बताइए, आपको 3 टर्म्स है, देखिए उन्हीं का आंसर सही लग रहा है। मैं तो काउंट कर रहा हूँ 1 2 3। हाउ मेनी टर्म्स? देखने में तो अभी 3 टर्म्स लग रहा है, नहीं लग रहा है। लेकिन जब हम बात करेंगे इज दिस एक्सप्रेशन इज बाइनोमियल और ट्रिनोमियल, क्या ये एक्सप्रेशन बाइनोमियल है या ट्रिनोमियल है? Because all of you already know, if example of binomial then must having 2 terms and trinomial having 3 terms। In this question 1 2 3 देखने में तो 3 terms लग रहा है, लेकिन first term and last term is same variable। first term and last term कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूँ? हैविंग सेम डेफिनेशन में मैं यूज किया हूँ सेम वेरिएबल। तो क्या ये क्वेश्चन से लिंक्ड है या नहीं है डेफिनेशन? यदि आप डेफिनेशन समझ जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में भी है। और डेफिनेशन तो रखना नहीं है, समझना है। सेम वेरिएबल लाइक टर्म, यदि हम कंपेयर करते हैं 3y और 2x, डिफरेंट वेरिएबल अनलाइक टर्म है ना। तो जब ये क्वेश्चन हम समझ लिए, यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने हम लोग को आ गया। अब यदि एग्जाम में आएगा क्वेश्चन डिफाइन द टर्म लाइक टर्म, डिफाइन अनलाइक टर्म, वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यदि नहीं रहा, डिफाइन रहा, तो क्या करेंगे? इसलिए डिफिनीशन का भी समझना याद होना जरूरी है या नहीं है? नेक्स्ट, आपको पता है नंबर ऑफ टर्म एंड एक्सप्रेशन। नंबर ऑफ टर्म, 1 टर्म मोनोमियल, 1 टर्म मोनोमियल। If in examination question may be asked, write any 2 examples of monomial, is the answer same for all students? क्या सभी स्टूडेंट्स का आंसर सेम हो जाएगा? No। यदि मेरा क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्लास में आप लोग अपने घर से 2 फ्रूट्स लाएंगे, मान लेते हैं, लाना ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं कि आप लोग लेकर आएंगे। सपोज दैट ऑर्डर हो गया आपको 2 फ्रूट्स लाना है, तो क्या सभी लोग मैंगो बनाना ही लाएंगे? यानी इसमें आपको जानना है कि फ्रूट्स में कौन कौन सा होता है ना। हाँ, ऐसा ना कि पोटैटो लेके आ जाएंगे। यानी स्टूडेंट से ये
टेस्ट लिया जा सकता है। लेकर आने का मतलब कि आपको राइट डाउन करके आने का कहा जाए। राइट द नेम ऑफ एनी टू फ्रूट्स, सपोज दैट राइट द नेम ऑफ एनी टू फ्रूट्स। तो एक स्टूडेंट से यदि लिखते हैं मैंगो बनाना, तो क्या सभी स्टूडेंट्स का यही आंसर होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो मोनोमियल का एग्जांपल सपोज दैट यदि कोई स्टूडेंट्स लिखते हैं 5x, तो सभी स्टूडेंट्स का 5x होगा? मे बी चेंज, है ना। लेकिन सिंगल टर्म होने चाहिए, और टर्म विथ वेरिएबल्स तो लिटरल एक्सप्रेशन हो जाता है। हाँ, सेकेंड टर्म का क्या होगा? बाइनोमियल। वेरी गुड। थर्ड, ओके, इट्स ऑल्सो राइट आंसर। फोर्थ, वेरी गुड, ये भी सही है ना। ये सब सारा कुछ मैं रिवाइज पिछले क्लास में भी कराया था और आज भी करा रहा हूं। स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान देना है कि अभी जो क्लास हो रहा है, इसका नेक्स्ट क्लास में इससे जुड़ा होमवर्क आपको करके कंप्लीट करके रखना है। होमवर्क दैट मीन्स learn definition, all students must learn, must revise. If homework is revise worksheets, then all of you must revise worksheets. Do examples question also, आप एग्जाम्पल क्वेश्चन भी बनाएंगे। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आपको डाउट होगा और तभी आप क्लास में पूछेंगे। टर्म, what is term? An algebraic expression separated by the symbol plus and minus. Separated by the, separated होता है प्लस से और माइनस, है ना। कैसे सेपरेट होता है, आइए एग्जांपल देखते हैं। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सपोज दैट 5x minus 2y plus 3z. Question is that in this expression, first of all of you count the number of terms, 3 terms. So this is trinomial, है ना? Yes sir. And if you have asked to separate, अगर आपको कहा जाए कि इसको सेपरेट करना है, तो क्या करेंगे? प्लस एंड माइनस साइन से सेपरेट करना है। जहां भी प्लस माइनस दिख रहा है वहां से इसको प्लस माइनस साइन को रिमूव करना है और कॉमा पुट करना है। एक टर्म ये, दूसरा ये, तीसरा ये, देन 5x, 2y, 3z। अब एक स्टूडेंट इस तरह से सॉल्व किया, ये माइनस साइन को छोड़ दिया, क्या ये सही होगा? इन मिडिल टर्म माइनस साइन, so we put minus sign. ध्यान देना। If question is minus 4x, 3y, 5z, question asked to you, this is separated term, ये सेपरेट टर्म है। नाउ ऑल ऑफ यू प्रिपेयर अ एक्सप्रेशन। अब आपको एक्सप्रेशन बनाना है ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। इस टर्म से क्या करेंगे? जब एक्सप्रेशन बनाना है तो कॉमा को हटाना है और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कनेक्ट कर देना है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफिनीशन जस्ट मैं अभी पढ़ाया। क्यों डिफिनीशन पढ़ाया? यही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफिनीशन में पढ़ाया ना अभी, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर, लिटरल एंड फंडामेंटल ऑपरेटर। आइए यहाँ देखते हैं -4x। अब यहाँ पे कॉमा नहीं डालना है, 3y डालना है, लेकिन सवाल है कि यहाँ कौन सा प्लस या माइनस क्या डालना है?
plus because it's a positive 3 5z। यदि यहाँ -5z क्वेश्चन रहता तो हम यहाँ पे माइनस कर है ना। तो आज के क्लास में मैंने इतना सारा आपको रिवाइज कराया, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, टर्म्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट आपके बुक में है या नहीं है? है। तो कोएफिशिएंट प्रोडक्ट ऑफ टू सिंबल न्यूमेरिकल एंड अलजेब्रिक। आप ये देखिए, सपोज दैट इन लोअर क्लास आप सब पढ़े होंगे 3 × 5 = 15 पढ़े थे। तो 3 × 5 that means 3 is the coefficient of 5 and 5 is the coefficient of 3, यानी 3 जो है 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 जो है 3 से हो रहा है। इन अलजेब्रा 1 first is numerals and other is variable। 3 into x 3x, 3 is the coefficient of x and x is the coefficient of 3. So there are two types of coefficient, numerical coefficient and literal coefficient। जो लेटर ऑफ अल्फाबेट वाला होता है उसको हम लिटरल कोएफिशिएंट बोलते हैं। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट एंड लिटरल कोएफिशिएंट। स्टूडेंट्स आप रिप्लाई कीजिए, क्या कोएफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके वर्कशीट में है या नहीं है? है। आप खड़े होकर बताइए क्वेश्चन क्या है, क्या करना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या करना है कोएफिशिएंट में? राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x into x। आपका क्वेश्चन है, जैसे 2x दे दिया गया और क्वेश्चन है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x into x, माने इस पूरे 2x में x का कोएफिशिएंट क्या है? 2। तो आंसर हो जाएगा 2। If question is that write the coefficient of 2 x, तो जिसका कोएफिशिएंट पूछा जाएगा हम उसको ढक देते हैं। सीधी सी बात, ट्रिक है ये, है ना। अब सपोज दैट -7abc कोएफिशिएंट ऑफ b। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ b? तो b को हम छोड़ देंगे और -7ac आंसर। इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट? इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है? तो कोई बच्चा बोलेगा 7, कोई बोलेगा -7। बताइए कौन सा आंसर सही करेगा? -7। अभी 7 का रिप्लाई आया था, यस और नो? जो रिप्लाई किए थे ऑनेस्टली खड़े हो जाइए, ऑनेस्टली। बिल्कुल, वेरी गुड। मुझे आपके ऑनेस्टी पे बहुत खुशी हो रही है। तो खड़ा हुए यानी अपना कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लिए, कोई डरने की बात नहीं है बेटा। जब गलत आंसर आप करते हैं तो फिर जब टीचर से पूछा जाए आप एक्सेप्ट कीजिए और सही क्वेश्चन समझने का कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे माइनस ध्यान देना है टर्म में। यदि माइनस ध्यान देंगे तो ऑलरेडी आंसर में माइनस देंगे, यदि माइनस यहाँ नहीं रहता तब मेरा आंसर ये होता है ना। इसलिए ध्यान देना है, ठीक है, समझ गए? गुड, आई अप्रिशिएट यू। आपका गलत आंसर रहा फिर भी हम आपसे खुश हैं। क्यों? क्योंकि आप ऑनेस्टली खड़ा होकर एक्सेप्ट किए और सीखने का कोशिश किए।
इतनी सारी पढ़ाई हुई, होमवर्क तो मिला नहीं। आइए होमवर्क पे आते हैं। Sir, diary. Yes, all of you write down homework in your diary. W, L and R. R मतलब रिवाइज लिख देता हूँ, यानी W मीन्स Right. राइट, यानी जो भी डिफिनेशन है आप उसको रफ में बार बार लिखिए, रिवाइज कीजिए। लर्न, रिवाइज ऑफ डिफिनेशन, प्रॉपर्टीज एंड DYK, डू यू नो, डू यू नो, जो कि आपके बुक में पेज में कहीं कहीं डू यू नो रहता है। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर, चैप्टर का मेन पॉइंट होता है। ऑल ऑफ यू नीड टू रिवाइज इट, आपको ये याद रखना, रिवाइज करना जरूरी है ना। अलजेब्रा वर्ड कहाँ से आया, किसने अलजेब्रा को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, फादर ऑफ अलजेब्रा कौन है? हाँ, Sir, D. डिफिनेशन, DEF मतलब डिफिनेशन। If you have doubt to solve question, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई डाउट है, आप क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, ठीक है। आप यदि क्वेश्चन पूछेंगे तभी लगेगा कि आप रिवाइज कर रहे हैं, है ना। अदरवाइज लगेगा कि रिवाइज नहीं हो रहा है। रिवाइज होना चाहिए ना, या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आइए स्टूडेंट को भी मिलवा देते हैं, मिल लीजिए।